नहीं, अगर मेरे को जेबी अगर 2024 भी नहीं मिलता था तो मैं 26 का भी अटेम्प्ट देता था, 27 का भी अटेम्प्ट देता था, पर मैं अरे सिर्फ जेबी ही जाना था। ये तो मेरा कंफर्म था, क्लियर that's रूट it. था। Hello guys, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. My name is Vidhan, and today we are back with our interview series. A lot of students had told us that they love our interview series with the JB toppers and toppers of other entrance exams who've made it to their dream colleges. So, which is why we've invited one of the toppers of MBA CT 2024 who had scored 99.96 percentile and is currently a student of JBMS. So let's straight away go and talk to him. Hi Ram. हाय विधान, हाउ आर यू? How good, yeah. How are you? How's JB? How's the internship going? इट्स ऑल गोइंग गुड। वर्क आई एम वर्किंग द प्लेस आई एम वर्किंग इज आई एम एंजॉयिंग अ लॉट देयर। लाइक इट फील्स अ ड्रीम फॉर मी एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, entering to JB was my dream, and now I am working with one of the well reputed companies that JB has given me a platform, That's so it amazing. feels good. Seriously, that's really nice. We'll dig more into that and we'll try to find ki what work you're doing over there. JBMS का culture कैसा है, if you're liking it, the professors, the students, etc. So उसके पहले I'll start off with the first question, which is what is your background like? If you could tell something about your background to our viewers, it would help them understand कि किधर से आए हो, किधर हो अभी तो relatability. So I was born and brought up in Nashik, and I hold a BCom degree from BYK College of Commerce. And I was working for 3.5 years as a sales associate with one of the cotton mills. And apart from my professional roles, I have been involved in sports as well. So I have played more than I was a cricket enthusiastic. So I've played more than 500 plus cricket matches for my college as well as community. And now finally I am into JBIMS. After four attempts, actually I have given attempt in 2021, 2022, 2023, 2024, and finally in 2024 I cracked CET and I'm into Wow. JBIMS. That's very inspiring यार राम, मतलब काफी लोग एक दो अटेम्प्ट्स के बाद दे आर लाइक कि नहीं, we cannot do more, but you continuing, this is your fourth attempt, that's a really big thing, मतलब I didn't know that. बट So हाउ डू यू basically, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब एक दो साल के बाद लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, देन हाउ डू डू इट एंड बीइंग अ बीकॉम स्टूडेंट वेयर दे uh, आर कंपैरेटिवली वीकर इन क्वांट्स एज कंपेयर टू इंजीनियर्स, तो कैसे फिर? तो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2021 में। तो लाइक आई वाज डू आफ्टर माय आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन 2020 फाइन, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर एमपीएससी। बेसिकली क्या हुआ था, एमपीएससी में मैंने अटेम्प्ट देने का सोचा था, पर मैंने एक दोस्त से कॉल किया तो उसको पूछा क्या कर रहा है। तो मेरा वो बहुत पुराना दोस्त था, ठीक है, मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको मैंने कॉल किया, उसको पूछा कैसा है भाई, तू क्या कर रहा है। वो बोला एमबीए कर रहा हूँ। मैं बोला एमबीए कर रहा है, तो ये क्या होता है एमबीए? मेरे को पता नहीं था एमबीए क्या है। सीरियसली टॉकिंग, एमबीए मेरे को पता नहीं था क्या था। तो उसने बोला यार सीईटी देना पड़ता है, बहुत एग्जाम्स होते हैं, उससे आपको कॉलेज मिलेगा, एमबीए कर लेना, 4-5 लाख की जॉब कर लेना कहीं पे, 3-4 लाख की, और सेटल हो जाना। मैं बोला यार 30,000 वॉज इनफ। लाइक मेरे लिए तो 30,000 बहुत था। 30,000 मतलब 1,000 रुपीज पर डे बहुत इनफ था मेरे लिए लिविंग के लिए। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है सीईटी देता हूँ। सोचा मैंने सीईटी देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 2021 में गया। उसने उसने मुझे ये बोला कि अगर तुझे एक भी परसेंटाइल आएगा, 1-2 परसेंटाइल, तो तुझे कोई भी कॉलेज एडमिशन दे देगा। तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में आया 33 परसेंटाइल। 33 परसेंटाइल आए। मैं गया कॉलेज में एडमिशन लेने। तो वो सर ने मुझे ये बोला कि यार वी डोंट टेक स्टूडेंट्स लाइक यू हु आर स्कोरिंग अराउंड 33 परसेंटाइल, आवर कॉलेज कट ऑफ इज 60 परसेंटाइल, फाइन, but they started asking for some demands, right? And I said, and that day my mom cried in front of them, right? Because I was missing 1 year already, I was getting a drop of 1 year. फिर मैंने सोचा यार कि नहीं, कुछ तो करते, मॉम डैड के लिए कुछ तो करना चाहिए, ठीक है। तो 2021 में फर्स्ट जब अटेम्प्ट दिया था, 33 परसेंटाइल था, घर पे आया, घर पे बैठा, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था कि यार कुछ नहीं किया है जिंदगी में, कुछ तो करना पड़ेगा, इतने दिन टाइम पास ही किया है, क्रिकेट खेला हूँ, मतलब 2014 से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 6 सालों से तो क्रिकेट ही खेल रहा था, बोला कुछ तो करते हैं यार। तो फिर मैंने सोचा यार नहीं, मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया ये सीईटी क्या होता है, कैट एग्जाम क्या होते हैं, स्नैप्स क्या होता है, एनमेट क्या होता है। तो तब से पता चला कि एमबीए करना है तो टॉप टीयर कॉलेज से ही करना, नहीं तो करना मत, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है आपको।
क्या होता है क्या नहीं होता है, अलग एक्सपोजर होता है सीखने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि JBIMS इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज, एंड वहाँ पे मतलब जाना की पॉसिबिलिटी 0.01% होती है, क्योंकि 1,50,000 में से 120 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार बच्चे कर कर सकते हैं तो फिर अपन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने 2 दिन के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, 2 दिन के बाद सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो 2022 में मैंने कैट तो 2022 में दिया नहीं था। लाइक सब बोल रहे थे कैट बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है, तो मैंने उसके लिए कुछ मतलब टच भी नहीं किया था कैट के लिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 2022 में जो सीरियस प्रिपरेशन किया। तो उसमें लाइक आई स्कोर अबव 99%, आई स्कोर 99.17 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट वाज अ जेन्युइन अटेम्प्ट। And how much? Fine. How much did you score? 99, 99.17 percentile in my In first attempt. That CAT? was a genuine. No, no, not CAT, in CET. CET, अच्छा ठीक है, CET। हाँ, कैट तो मैंने दिया नहीं था क्योंकि कैट करेक्ट 2022 करेक्ट में करेक्ट, लाइक, या हाँ, तो 2022 में दिया, 19.17 आया। तो थर्ड मतलब सीईटी में जो थर्ड थर्ड या फोर्थ का नंबर का कॉलेज है वो मिला था, कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस था, तो वो कॉलेज मिला था। लाइक पर मैंने सोचा कि यार नहीं, जेबी के लिए एक बार और ट्राई करता हूँ। हम्म। 2023 में दिया, उसके साथ कैट ही दी, कैट भी दिया। कैट में भी लो परसेंटेज आया। कैट में आया, बेबी आया तो न्यू आईएम्स के कॉल आए थे। पर यार वापस सोचा कि यार कन्विंस करता हूँ घर वालों को, ठीक है एक बार वापस अटेम्प्ट देने दो मेरे को, 2023 फोर का भी एक, देखते क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली फेल ही हो जाऊंगा, या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी कोई थ्री Tier 2। अटेम्प्ट ना अभी तो, 2022 दिया तूने? 2022 सीईटी दिया, 2023 में वापस आया कैट के लिए। सीईटी भी दिया 2023 में। लाइक तभी भी मैंने बहुत कम स्कोर किया था, क्योंकि प्रेशर इतना था कि क्रैक करना है, क्रैक करना है, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत था, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हाउ किया मच था डिड यू दो स्कोर साल इन 2023 सीईटी? यस, आई एम सेइंग अच्छा okay। एक्चुअली मेरा क्या था, मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन किया था। और ऐसा था कि सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बुक्स भी बनाए हुए थे 2 सालों से, शॉर्टकट्स की बुक्स बनाए थे, सब कुछ, सब बुक्स बनाए हुए थे। 2023 में ऐसा था कि पजल्स में लाइक आई वॉज आई एम नॉट सेइंग दैट कि मुझे बहुत ये होता है, प्राउड फील होता है, पर पजल्स ऐसा था कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था। कौन सा भी पजल देना मैं वो सॉल्व करने वाला हूँ। मतलब लाइक पजल्स के 30 में से 30 मार्क्स तो कंफर्म ही थे मेरे को। ओके। कोई इधर उधर हो जाएगा पजल्स में, पर पजल्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, क्योंकि मैंने अभी तक 750 to 800 पजल्स अभी तक सॉल्व किए होंगे मेरे चार तीनों साल में। इतना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद पहले पजल्स लेता था, कम से कम 10 एक पजल सॉल्व करता था, उसके बाद रात सोते वक्त भी पजल्स ही सॉल्व करके सोता था। इतना ओके स्ट्रॉन्ग था मेरा पजल्स, ठीक है। ठीक है। तो एलआर में भी होल्ड अच्छा था, तो मैं गया पेपर के लिए 2023 में। कैट सीईटी का पेपर दिया ना, तब गया पेपर में। पजल्स, पहले क्वेश्चन पजल्स था, ठीक है। पर जब मैं स्टार्ट किया पजल, तो मेरे से थर्ड टू द लेफ्ट था, तो मैं थर्ड टू द राइट, राइट ऐसा समझ लिया कि थर्ड टू द ओह। राइट वेट है, हम्म। ठीक है। तो मैंने वो सॉल्व किया। मैंने बोला आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब मिसमैच हो रहा था। तो फिर मैंने क्वेश्चन वापस से पढ़ा, लाइक तो तभी मेरे को समझ गया कि जेबी आगे चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आपको समझ गया कि जेबी आगे चलेगा, ठीक या है। तो तब से मैं यार सोचा यार इतने साल, मतलब तभी मेरे माइंड में आया कि इतना मेहनत किया है, इतने 2 साल डाले तूने, इतना प्रिपरेशन किया, ये बुक्स बनाई, ये नोट्स बनाए, वो बनाए, पर सब वेस्ट ऑफ टाइम था, कुछ नहीं बना। तो फिर मैं वो पेपर में टाइम पास ही किया पूरा। लाइक जो आएगा धीरे धीरे, सी मार्क किया, डी मार्क किया, फिर टाइम पास ही किया, तो 96.34 आया ओ, ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब थ्री में। बिकॉज यू मेस्ड विद द पजल वो वाला, यस, इसके यस, लिए यस। तूने ढंग से अटेम्प्ट ही नहीं किया पूरा पेपर? नहीं, मेरे को पता चल गया जीबी आगे चले गए, और वेलिंकर तो छोड़ ही गया था पहले ही, स्टार्टिंग में 99.17 पे तो पहले ही छूटा हुआ था। तो मैं बोला यार मतलब ही नहीं बनता है वापस अटेम्प्ट देने का, कैट देंगे और अभी देखते हैं कैट में क्या होता है। मतलब यू नवंबर में शुडंट आएगा हैव कैट। डन दिस। वैसे कोई बहुत सारे लोग पजल्स में रुक जाते हैं, मिस कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट यू वोंट स्कोर हाई। वो तेरा तो मोरल बेसिक, डाउन हो गया था, तेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मन नहीं किया होगा, बट यू कुड हैव स्टिल स्कोर्ड अ या हाई आई कुड हैव नंबर। स्कोर, बट मैंने वहां पे कम से कम 4 to 5 मिनट्स वेस्ट कर दिया स्टार्टिंग के पजल में। लाइक मैंने वो रॉन्ग सेट पकड़ लिया था, और मेरा ऐसा था कि मैं पजल सब सॉल्व करने वाला हूँ, लाइक इतना ईगो पे था कि पजल सब सॉल्व करने वाला हूँ। फाइन, ये ईगो पे आ गई थी बातें कुछ। तो मैंने यार वो बाद में समझा घर पे आके कि यार ईगो साइड में रखना चाहिए अपने कुछ बातें, करेक्ट और करेक्ट। जो ऐसा आ रहा है, जो फ्लो में आ रहा है वो फ्लो में स्टार्ट करना चाहिए। हम्म। लाइक आप पहले बेसिक से स्टार्ट करो, सिंगुलर क्वेश्चन स्टार्ट करो, उसके बाद जैसे आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो वैसे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको फ्लो आना चाहिए बस एक बार। कॉन्फिडेंस इज द मेन की। फाइन। तो फिर 2023 में कैट दिया, तो उधर भी 96 के आसपास ही परसेंटेज आया। तो वहाँ पे भी थोड़ा बेबी आईएम्स न्यू आईएम्स से कॉल आया, पर वो इंटरेस्ट नहीं था।
पर फाइनल 2024 में जो प्रिपरेशन के साथ गया था, लाइक अभी कुछ मतलब लाइक इतना था कि मैं कर सकता हूँ, इस साल तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आराम से गया, जैसे सेट आया वैसे सॉल्व किए, जो नहीं आ रहा था वो छोड़ दिया। लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस भी था पर लेंदी दिख रहा था, तो वो भी मैंने स्किप कर दिया। तो दैट इज द रीजन, एंड आफ्टर सीइंग आई वाज इन स्लॉट 4, so it was one of the toughest slot. तो कैट का प्रिपरेशन रियली हेल्प मी। जो मैंने सिर्फ सीईटी के भरोसे था, पर कैट में भी थोड़ा जो प्रिपरेशन किया था, और सीईटी का पूरा कैट का क्वेश्चन पेपर आया था, तो मेरा एक पास एक था कि यार नहीं, ये सॉल्व हो सकता है, और बहुत मॉक दिए थे कैट के भी, तो क्वेश्चन कोई कोई रिपीट हुआ था। तो जब मैं मॉक एनालिसिस ऐसा करता था सर कि 12-12 घंटों का मॉक एनालिसिस करता था। सिर्फ मॉक देना तो बहुत ईजी है, कम से कम 12 घंटे, 14 आवर्स, पूरा दिन मॉक एनालिसिस करता था, जिससे कि मैं कंपेयर करता था कि अगर मेरा आंसर राइट है तो टॉपर कितना टाइम ले रहा है, मैं कितना टाइम ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है। दैट्स अ गुड वे टू चेक। हाँ, अगर टॉपर मेरे से 48 सेकंड ले रहा है, और मैं अगर 54 सेकंड्स भी ले रहा हूँ, तो यार नहीं, मैं थोड़ा पीछे हूँ, क्योंकि टॉपर बहुत आगे चले गया है मेरे से, क्योंकि उसका दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरा एक ही होगा, वो भी आगे चले जाएगा। तो यानी वो इस पॉइंट ऑफ मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स का खेल होता है जीवी जाना। आई दो आई दो कैन तीन तीन कम्प्लीटली रिलेट, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.87 था। So I missed JVMS by a whisker, by a hair. तो इसलिए आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि एक दो मार्क्स का भी क्या क्या वैल्यू होता है। यस, एंड दो बहुत दो tough मार्क्स होता है यार, से। बिकॉज दो एक दो मार्क्स की वजह से यू विल हैव टू रिपीट द होल ईयर टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। वही तो था, अगर स्लॉट 4 मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो सबके लिए डिफिकल्ट था वो, ऐसा तो था। पर मैंने सोच लिया था कि मॉक में अगर मेरा 158 160 स्कोर जा रहा है, ठीक है, पर ये स्लॉट में वैसा नहीं होने वाला है। मेरे को पता था 135 भी मैंने क्रॉस कर लिया तो भी मेरा जेबी क्लियर, रूट क्लियर था। तो वो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मेरे को सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, ऑलमोस्ट सब देखने तो है, पर सॉल्व सब नहीं करने। जो मेरे को पता है कि होगा, मेरे को वही हाथ लगाना है, और ईगो पे बात नहीं लेनी। कोई पजल भी इतना भी इजी आया, डिफिकल्ट भी आया, तो ईगो पे बात नहीं लेनी, इस साल तो ईगो पे नहीं लेना है, वो तो मेरे माइंड पे पहले से क्लियर था। पेपर को बैठा, वर्बल से स्टार्ट हुआ। वर्बल तो थोड़ा वीक था पहले से, वर्बल। कॉन्स आया, कॉन्स स्ट्रॉन्ग था मेरा, कॉन्स अच्छा था क्या, क्योंकि बीकॉम बैकग्राउंड था, पर मेरा कॉन्स बहुत अच्छा था। लाइक बच्चे बोलते हैं बीकॉम से नहीं होता है कौन, पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, कंसेप्ट के लिए अलग अलग बुक्स बनाओगे ना, जैसे कंसेप्ट से बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ऐसे अगर बुक्स नोट्स बनाओगे ना, तो आपको पजल पजल से जितना मेरे को प्यार था, उतना कौन से भी प्यार था। तो एक एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजी दिस व्हाट थी। वी टेल आवर स्टूडेंट्स आल्सो जो कॉमर्स है, कि खाली फुकट डर के मतलब नहीं है फॉर क्वांट्स। आई मीन इट्स वेरी इजी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, फॉर्मूले देखोगे, बेसिक क्वेश्चन से चालू करोगे तो इजीली सॉल्व होएगा। लोग सीधा जंप करेंगे टफ क्वेश्चंस पे, फिर बोलेंगे अरे नंबर्स कुछ समझ ही नहीं रहे, कैसे सॉल्व करे क्या करे, सो दैट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन। तो But you बेसिकली ये are थी। a live example where a commerce यस, student is very good with quants and puzzles, so very inspiring. तो बेसिकली क्या होता है कि कौन, मतलब ऐसा है कि इंजीनियर लोग पहले 4 सालों में वो, मतलब वो पहले से उनका फ्लो होता है अकाउंट्स में। पर बीकॉम का कैसा है कि अकाउंट सब्जेक्ट होता है, वो भी होता है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका फ्लो नहीं होता है इतना। तो आप स्टार्ट कहाँ से करो, टेबल्स देखो, लाइक उसके Right, बाद right. आप टेबल Fractions से देख स्टार्ट सकते हो, करो, tables फ्रैक्शन, देखो, percentages, speed परसेंटेज, math. ये स्टार्ट बेसिक से करो। उसके बाद जम करना कि जो अरिथमेटिक सेक्शन है, क्योंकि 70% अरिथमेटिक से ही आएगा, Correct. 20% मॉडर्न मैथ से आएगा, और फिर ज्योमेट्री वगैरह में वो बात की बात है। अरिथमेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियोज हो गया, परसेंटेज हो गया, ये जो 3-4 टॉपिक है ऊपर के, उससे अगर अच्छा होल्ड बनाओगे, तो आपका 25 मार्क्स का तो डीआई आ जाएगा, Hmm. डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको हेल्प किया जाएगा उससे। Hmm. 25 में से आप आराम से 15 टू 17 मार्क्स तो स्कोर कर लोगे, और बचा हुआ अरिथमेटिक में आप आराम से 15 टू 17 मार्क्स आ गए, तो भी 32-34 का मार्क्स आपका आराम से क्लियर हो जाता है। तो Okay. आप मॉडर्न, सीधा मॉडर्न मैथ्स पे जंप मत करना कि यार मतलब बुक्स लिया और मॉडर्न मैथ्स पे जंप कर लिया, ज्योमेट्री वगैरह कुछ भी देख लिया, वैसा मत करना। पहले अरिथमेटिक से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। एक बार आपको अगर प्यार हो गया उससे, तो फिर कुछ भी हासिल हो सकता है, अगर प्यार हो Right. गया तो Right. फिर कुछ भी हो सकता है। Completely, completely agree, Ram. Completely. But मेरा एक ये क्वेश्चन था कि 2023 के अटेम्प्ट के लिए यू हैड टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तो 2023 में जब तूने मेसअप किया, तो उसके बाद 2024 के लिए कैसे कन्विंस किया? Actually, my mom and dad is very supportive. Like I belong from middle class family and I have a good business.
माय डैड हैज एन बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, लाइक दे आर वेरी वेल सेटल्ड। तो मैंने मॉम से एक ही बात बोली कि मॉम यार देखो, मैंने इतने जिंदगी में क्रिकेट ही खेला हूँ, यही किया हूँ, पर अभी पढ़ने की इच्छा हुई है। तो मैंने अटेम्प्ट दिए, 2 साल अटेम्प्ट दिया, और मुझे गवर्नमेंट सर्विसेज में लगना था। लाइक आई माई ड्रीम वॉज टू बिकम अ पुलिस, पीएसआई, महाराष्ट्र पुलिस में जिसको पीएसआई बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला मॉम, मैं तेरे लिए मेरी मेरी ड्रीम मतलब रुका दी क्या, मेरे को पीएसआई होना था, मैंने वो नहीं किया क्योंकि तू उस दिन रोई थी, ठीक है। जहाँ पे मैं एडमिशन के लिए गया था उस दिन तू रोई थी, तो मेरे को कुछ तो भी करना है उसके लिए। तो मैंने मॉम को बहुत कन्विंस किया, डैड को भी बोला, डैड ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जब तक तेरे को अटेम्प्ट देना है बिंदास देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। जब तक तुझे अटेम्प्ट देना है देते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को नाइस। बेबी अगर 2024 भी नहीं मिलता था, तो मैं 26 का भी अटेम्प्ट देता था, 27 का भी अटेम्प्ट देता था, पर मैं नाइस। सिर्फ जेबी जाना था। ये तो मेरा कंफर्म था, क्लियर That's रूट it. था।